Hello and welcome you all students. Dear students, good o'clock all of you. On behalf of Rajmata Anand Kumari Public School, I welcome you all for class 9, subject science. Chapter 2 is matter around the sphere or not. Today's topic is physical and chemical change. Let's start now. In the previous chapter, we have learned about a few physical properties of matter. Physical properties बड़ी थी matter की. The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. Interconversion of state is a physical change. जैसे किसी सॉलिड से लिक्विड बनना, क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हुआ. लिक्विड से फिर से सॉलिड बनना, वाटर से आइस, आइस से वाटर. तो ये क्या चेंज हुआ? स्टेट चेंज हो रही है. तो स्टेट चेंज होना कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी. Because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. Water on heating, water vapor and gaseous form on cooling, ice, solid form, liquid, solid, gas. Interchange. These are called physical change. Both water and cooking oil are liquid, but their chemical character are different. They differ in odor and inflammability. We know that oil burns in air whereas water extinguishes fire. Oil तो एयर में जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि वाटर आग में जलता नहीं, आग को बुझाता है. It is this chemical property of oil that makes it different from water. Burning is a chemical change. During this process, one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition. जिसमें chemical composition में change हो जाए. Chemical change bring change in the chemical properties of matter and we get new substance. जिस चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट हो, देन वी कैन से ए केमिकल चेंजेस, chemical property of matter and we get new substance. Chemical change is also called chemical reaction. और इसी chemical change को ही हम क्या कहते हैं? Chemical reaction कहते हैं. During burning of a candle, both physical and chemical change take place. Can you distinguish these? Burning of a candle has both physical and chemical change. Melting of wax is a physical change. सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, वैक्स का मोम का पिघलना, प्रॉपर्टी चेंज होना है, इसलिए फिजिकल चेंज है. लेकिन जो रेजिड्यू बनता है, जो जिससे कि हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो जो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये तो एक नया सब्सटेंस बना, तो इसमें केमिकल चेंज भी है.
जिसमें कोई नया सबस्टेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, वहां न्यू सबस्टेंस फॉर्मेशन बिकम्स ए केमिकल चेंज। एज लाइक फॉर एग्जांपल, पोटैटो को बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद पोटैटो कैसा हो जाता है, पहले जैसे ही रहता है हार्ड, कैसा हो जाता है बॉईल करने के बाद सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। जो रॉ पोटैटो से जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाता है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो ये न्यू सबस्टेंस बना, तो कैसे चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। रॉ एग में लिक्विड फ्लूइड बना रहता है, जब उसको बॉईल करते हैं तो पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, फिर उसे दोबारा रॉ एग बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। वाटर से आइस बन सकती है, आइस को टेम्परेचर इंक्रीज होने पर फिर से वाटर बन जाएगा, है ना। तो ये रिवर्सिबल होते हैं। और कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जिन्हें पुनः वापस उनकी पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। जैसे पोटैटो को एक बार बॉईल करने के बाद फिर से उसको रॉ फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, तो इरिवर्सिबल चेंज। तो मोस्टली केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं और फिजिकल चेंजेस मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? On the basis of their chemical composition, substance can be classified either as elements or compounds. Elements किसे कहते हैं? Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Atomic Laurent Lavoisier, 1743 to 94, the French chemist, फ्रांस के केमिस्ट थे। फ्रांस के केमिस्ट थे एक लुईस पास्चर, जिन्होंने पास्चराइजेशन का डेवलपमेंट इन्वेंट किया था, मिल्क का पास्चराइजेशन। वहीं के फ्रेंच केमिस्ट वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटल यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, जिन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की बेसिक फॉर्म होता है एक एलिमेंट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, जिसका कि विभाजन नहीं किया जा सकता बाय केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। सबसे छोटी यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर वी कैन से प्योर फॉर्म एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। उस फॉर्म को कहते हैं हम एलिमेंट्स इन द प्योर फॉर्म। कोई चैप्टर पढ़ाने से पहले सबसे पहले हमने आपको एलिमेंट्स लर्न करने दिए थे विद देयर एटॉमिक नंबर एंड सिंबल यूज। एलिमेंट्स कोई भी हो उनको डिफाइन किया गया है स्टडी के लिए मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। मेटल क्या होते हैं? मेटल्स यूजुअली शो some or all of the following properties. They have a luster. मेटल जितने भी होते हैं सब में कुछ ना कुछ चमक होती है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट शाइन होती है, लस्टर होती है। दे हैव सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो कलर, उनका सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो कलर होगा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली मेटल में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। दे आर डक्टाइल। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। उसे मेटल को पीटने पर बीटिंग द हैमर्ड हथौड़े से पीटते पतले से पतले तार बनाए जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। और मेटल कैसे होते हैं? मोस्टली मेटल डक्टाइल होते हैं। मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं, वुड के वायर नहीं बनाए जा सकते, कोयले के वायर नहीं बनाए जा सकते, ये नॉन मेटल होते हैं। मेटल मोस्टली डक्टाइल होते हैं, उनके वायर बनाए जा सकते हैं पतले से पतले। और मेटल्स को हैमर्ड करने पर उनकी पतली से पतली शीट भी बनाई जा सकती है। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मोस्टली मेटल मैलिएबल भी होते हैं,
ये प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी कहलाती है। That can be hammered into thin sheets. They are malleable. They are sonorous. Sonorous का मतलब होता है आवाज प्रोड्यूस करने, साउंड प्रोड्यूस करने से मतलब है sonorous। यानी कि मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट मेटल डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सबकी आवाज से आप पता लगा सकते हैं कि आपने देखा ना हो किचन में अगर कांच का बर्तन गिरा है, कांच गिरा है या स्टील का बर्तन गिरा है, तो आपको आवाज से ही पता चल जाएगा, जिसकी डिफरेंट मेटल की डिफरेंट साउंड होती है। ओके, एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे एग्जांपल। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, non-metal usually show some of all of the following property. They display a variety of colors. उनमें different कलर होते हैं non-metal में। They are poor conductor of heat and electricity. Heat and electricity के poor conductor होते हैं या insulator होते हैं। They are not lustrous, उनमें चमक नहीं होती, sonorous नहीं होते यानी कि बजते नहीं हैं, और malleable भी नहीं होते, यानी उनकी पतली से पतली शीट भी नहीं बनाई जा सकती। एग्जाम्पल है नॉन मेटल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा आर सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें मेटल, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी पाई जाती हैं। इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स। आई एम सॉरी टू से कंपाउंड्स। ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, सी। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ओ से इंडिकेट कर। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बंडल CO2, जिसमें एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के मिलकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये हुआ कंपाउंड फॉर्म, जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड? वी गेट कंपाउंड। लेट्स रीड दिस चैप्टर carefully and try to understand. Thanks a lot, students.